Hello friends, welcome back to our channel Creavidico. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. The knowledge or the knowing process itself involves the three process which I will show you right now. This one, the gaining knowledge or uniting knower and known through the process of knowing, which was given by Dilibeck in 1987. So here you can see the knower students. The knower are considered as the students and the known is considered as subject matter, and the process of knowing will be involved here. Let us know with this. First, the knower means you. Consider yourself as here. Knower means with the help of senses, we gain different information. So the first, the process or the gaining knowledge will come through the senses by seeing something or by feeling. This will come under. Then in the process of knowing from senses will include the perception, the observation, whatever we see will come under the knowing process. Only सेंस होना ही नहीं है, you have to perceive या फिर you have to feel that particular thing, then only you will gain the knowledge or the subject matter means sensory knowledge of concrete objects. Then only you will came to know about that particular information or knowledge. Then in known, the student's mind, in the knower process, the mind will come. Then in the process of knowing means mind is related with the thought process. If you are thinking, only mind होने से नहीं होगा, you have to thought. तो वो thought process भी active होना चाहिए in a person, तो वो भी process of knowing में आएगा, and it will help to gain knowledge of relationship or difference between. So mind helps in the thought process, and it automatically help it in knowing the subject matters, which means knowledge of relationships. Then comes the intellectual part, the intelligence. With the help of intelligence, you will be able to analysis and synthesis. Means you will be able to compare what is right, what is wrong, able to analyze and synthesis. So it will help in gaining, or it will help you to know the subject matters in a rational and abstract knowledge. So rational means the importance of that, authenticity of that, and the abstract knowledge will you will came to know with the help of that. Then the last one is the feeling. Feelings also helps us to gain intuitive knowledge of natural law. So in the process of knowing, you can also include the intuition. Means feelings helps intuition, and from the feeling the intuitions develop, and intuitions leads us to intuitive knowledge of natural law. So these are the process, some kind of process of knowing process, which has been given by the Dilbeck. Okay, the process of knowing is a personalized individual task that is influenced by experience and unintentional contextual clues. There are three aspects of knowledge where the knower means the consciousness of the participant, where you will be involved, that will include in the consciousness of the participant. Then the known means the field of the study. There should be a particular subject matter or the process which includes, or whatever we came here to know something, that will include in the second part. Then the third will come the process of knowing, which connects the knower and known. The process of knowing connects the process of knowing connects this and this, means the knower and the knowledge was connected by the process of knowing. So this is the importance of knowing process.
Apart from that, there are different ways of knowing with the help of the main was the sense perception. The first will come under the sense perception, means in the first step, the sense perception will help to know different knowledge. The first will come under the sense perception. If the sense perception has been developed, then only in the later period we gain knowledge, or we connect with the knowledge with the help of language. And then the last one is the emotion. So these three are related with each other. The sense perception, then they should have some language, and then the emotion one. Okay, so now we will go forward with some sources of knowledge. What are the different sources of knowledge which helps us in the knowing process? So the first, I will tell about the Indian philosophy, or the thought of Indian philosophy, which has been given in the perspective of knowledge acquisition, what our Indian philosophy thought about that. In Indian philosophy, you will see the perception through senses. They had told about the pratyaksha concept, or perception by the sense in primary, is the primary source of human knowledge. The first one is the pratyaksha dhyana, means whatever you have seen with the help of your senses, mind processing, means perception through senses leads to the mind processing, is this one. Perception through senses, then it helps in the mind processing and it leads to the knowledge. So this will come under pratyaksh. Pratyaksh means हिंदी का क्या होगा, ये प्रत्यक्ष वर्ड हिंदी में है, मीन्स जो भी आप लोगों को इन फ्रंट डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, फ्रॉम दैट वट एवर नॉलेज यू आर गेनिंग, दैट विल कम अंडर प्रत्यक्ष ध्यान. देन द नेक्स्ट इज द अनुमाना. अनुमाना इज ऑल्सो ए हिंदी वर्ड, मीन्स अनुमान से हम लोगों को जो भी नॉलेज मिलता है, दैट विल कम अंडर अनुमाना. मीन्स फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल से दैट अगर स्कूल के किसी बच्चे ने टिफिन लेके गया है स्कूल में, ब्रेक है, ब्रेक का टाइम हो गया है और उसने टिफिन खोल के देखा है, तो उसको क्या, जैसे कि उससे पता है कि टिफिन में जरूर कुछ ना कुछ खाने के लिए होगा, तो उसको खोल के देख के उसको क्या पता चला, देयर इज नो फूड. मतलब उसको अनुमान लगाया, उसने अनुमान क्या लगाया, दैट मे बी सम स्टूडेंट्स हैव बीन ईटेड, शायद किसी बच्चे ने उसका टिफिन खाया होगा, वो अनुमान लगा सकता है. मीन्स किसी चीज का एब्सेंस से जो हमको नॉलेज मिलता है, किसी चीज से एब्सेंट अगर है तो उससे भी हम लोगों को कुछ नॉलेज मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों का क्लास 9:30 में है, अगर इन यूनिवर्सिटी में अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तो 9:30 में आप वहां पे पहुंचे और क्लास खाली है, तो व्हाट यू विल थिंक कि उस एब्सेंस से भी आप कुछ अनुमान लगा रहे हो. मे बी क्लासरूम ये नहीं है, मे बी सारे बच्चे को कुछ प्रैक्टिकल वर्क के लिए ले गए हैं, तो दैट इज अनुमान. मीन्स विद द एब्सेंस ऑफ समथिंग ऑल्सो हम लोग कुछ अनुमान लगा सकते हैं. सो दैट विल बी ऑल्सो वन काइंड ऑफ नॉलेज. तो वो था इंडियन फिलोसफी का. फर्स्ट वन इज प्रत्यक्ष ध्यान, then the second is anumans. Mind process information to draw inference from different example और situation को हम खुद ही सोच के हम कुछ ना कुछ हमको नॉलेज मिलता है. विद द एब्सेंस और प्रेजेंस से हम जो अनुमान लगाते हैं, that one. Then the last one is शब्द. शब्द हिंदी मीन्स वर्ड. जो शब्द हिंदी वर्ड है तो उसका मीनिंग है वर्ड. वर्ड या वोकेबुलरी से भी हमको डिफरेंट नॉलेज मिलता है. किस सेंटेंस में हम किस तरह से यूज करेंगे, जैसे कि अभी नॉलेज के बारे में नॉलेज बोल रही है, नॉलेज वर्ड से भी आप लोगों का कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहे हो. उसके बाद डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में अगर मैं पूछूं, तो
टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, ये वर्ड सुन के भी आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला है. सो माइंड प्रोसेस वर्ड मीन्स जो भी आप लोगों को अभी तक बुक्स, टॉक्स एंड डिस्कशन से जो नॉलेज मिला है, दैट विल कम अंडर शब्द नॉलेज. तो ये था इंडियन फिलोसॉफी का 3 ways of knowing process. Apart from that, we also have to see some other source which will come under. Let me show you. Sense, experience and empirical knowledge. I have already told about this. In Indian philosophy also sense को या फिर जो प्रत्यक्ष दर्शन से हमको प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से जो हमको ज्ञान मिलता है बाय लिसनिंग, हियरिंग, स्मेलिंग, फीलिंग एंड टेस्टिंग मीन्स लुक एंड सी. जो भी आपको दिखाई दे रहा है उससे जो भी आप लोगों को नॉलेज मिल रहा है, दैट विल कम अंडर सेंस, एक्सपीरियंस, इम्पेरिकल नॉलेज. तो ये भी एक वन टाइप ऑफ वी कैन से दैट वन टाइप ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज, सेंस, एक्सपीरियंस, इम्पेरिकल नॉलेज. यही पे यहाँ पे दिया है इम्पेरिकल क्वेश्चंस अस टू लुक एंड सी वेयर इज a rationalist tell us think and things through means rational को बाद में बोलूंगी. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस एक्सपीरियंस, मतलब सेंस से जो एक्सपीरियंस मिलके विद द हेल्प ऑफ सीइंग, हियरिंग एंड फीलिंग एंड टेस्टिंग, that will come under sense experiences. With the help of sense experience also we can learn different things, or it can be regarded as a source of knowledge. Then the next one is reason, rational knowledge. जो अभी बोला rational के बारे में, rational helps us to think things through. Reason, rational knowledge. Reason, rational knowledge means उस चीज का importance होना चाहिए. It not only depends upon our senses, not by senses. It is not by senses. मतलब हर एक चीज जो आप फील कर रहे हो, जो आप देख रहे हो, जो आप टच कर रहे हो, मे बी दैट इज नॉट करेक्ट. कभी कभी क्या होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन एंड फाइंड आउट द रैशनैलिटी ऑफ इट. ऑथेंटिक है कि नहीं, राइट है कि नहीं, रॉन्ग है कि नहीं, मीन्स सेल्फ एविडेंट कलेक्ट जब करके हम लोगों को कुछ नॉलेज मिलता है, दैट विल बिकम अंडर रीजन रैशनल नॉलेज. So this will be the another source of knowledge. Means reasoning or true is the central factor. Reasoning करना means दो चीजों के बीच में हम जब कंपेयर करके कौन सा करेक्ट है, कौन सा वैलिड जजमेंट है, वो निकालते हैं, that will come वो क्या हो जाएगा आपका रीजन रैशनल नॉलेज. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि ये एग्जाम्पल डिफरेंट एग्जाम में भी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल we can say that if A is greater than B, मतलब A बड़ा है B से. From the first sentence we came to know that A is greater than B and B is greater than C. B किससे बड़ा है? C. Means basically reason rational knowledge is based on some fact जहाँ पे आप लोगों को reasoning या thought process को involve करना होगा. Then again it is say that and then A is greater than C. A C से greater है, हाँ, because C से B भी greater है, B से A भी greater है. Then here we can making a true statement. जैसे कि अगर क्वेश्चन आता B is greater than A, C is greater than B, so what is A is greater than C or not? यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, हाँ A C से ग्रेटर देन है. तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, रीजन रैशनल नॉलेज में. मीन्स आप लोगों ने रीजनिंग करके या लॉजिकल वे में थॉट प्रोसेस लगा के पता चला है कि दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. so that will become under reason rational knowledge. Then next we will go to the third source of knowledge will come under
एक्सपेरिमेंटेशन मीन्स एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को जो भी नॉलेज मिलता है या फिर जो जो एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, थ्योरी डेवलप हो चुके हैं, दैट ऑल कम्स अंडर द साइंटिफिक मेथड। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक मेथड यूज करके उसको प्रूफ किया गया है, उसका रिजल्ट फाइंड आउट किया गया है। सो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन ऑल्सो वी गेन डिफरेंट नॉलेज। तो द थर्ड सोर्स इज द एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जैसे कि एक्सपेरिमेंट सब लैब में ही होता है ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक आदमी ब्रिज क्रॉस कर रहा है या फिर एक ब्रिज से गाड़ियां चल रही हैं, तो दूर से ही आप उस चीज को देख के क्या आप अनुमान लगा सकते हैं या फिर क्या आप पता कर सकते हैं दैट द ब्रिज इज सेफ फॉर क्रॉसिंग। मीन्स ब्रिज के ऊपर से हम लोग जा सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी डिफरेंट पीपल आर क्रॉसिंग दैट ब्रिज। तो वो भी एक्सपेरिमेंटेशन नॉलेज में हो जाएगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटेशन मतलब करके देखना। तो आप किसी को देख रहे हो तो यू कैन मेक अ परसेप्शन दैट यस इट कैन, दैट इट इज सेफ फॉर क्रॉसिंग। तो ये भी आपका एक्सपेरिमेंटेशन में आ जाएगा। We depend on experimental knowledge for particular facts of everyday world. Yes, everyday world में जो भी हो रहा है maximum knowledge हमको experimentation से ही मिल रहा है। So, for example जैसे कि cold, fog, heat, noise or smoke, all this will come under experimentation knowledge. Then the next one is authority knowledge. Authority का मतलब क्या होता है? जैसे कि जिसके हाथ में पावर हो उसको हम ऑथोरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑथोरिटी नॉलेज में क्या आएगा, जैसे कि एल्डर लोग, एल्डर्स अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो उस उनके हाथ में, जैसे कि आप लोगों के घर में अगर फादर मदर कुछ चीज बोल रहे हैं अबाउट देयर बिलीफ, और वी कैन से दैट अगर आप मंदिर या मस्जिद में जा रहे हो तो दैट पर्सन पंडित कुछ बोल रहा है अबाउट द रामायण महाभारत, या फिर दैट वन दैट ऑथोरिटी जिसको हम रेस्पेक्ट करते हैं एंड वी बिलीव इन दैट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर इंडिया का पीएम अगर कुछ बोल रहे हैं, डिसीजन ले रहा है, वी आर ऑल एक्सेप्टिंग दैट डिसीजन बिकॉज वी बिलीव इन देम, और उस चीज में उस पोजीशन में है तो उससे भी हमको कुछ नॉलेज मिल रहा है। WHO से कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वी आर बिलीविंग दैट एंड वी आर गेनिंग नॉलेज। तो ऑथोरिटी विल कम ऑन, ऑथोरिटी ऑल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। मीन्स द डॉक्ट्रिन और अल्टीमेट सोर्स ऑफ मीन्स द गॉड, भगवान को भी हम लोग मान सकते हैं ऑथोरिटी के हिसाब से। द स्टेट, द ट्रेडिशन ऑफ द एक्सपर्ट, ये सब कुछ ऑथोरिटी में आ जाएगा। बचपन में बोलते थे ना कि ऐसा नहीं करते हैं नहीं तो गॉड पनिश करेगा, तो ये बच्चे लोग मान जाते हैं, या फिर वी बिलीव नाउ ऑल्सो कि ये नहीं करना चाहिए पाप लगेगा। सो दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम द ऑथोरिटी। सो हम लोग क्योंकि बड़े लोग ने बोला है तो उस चीज को हम लोग बिलीव करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द एक्सपर्ट। देन इंट्यूशन। इन इंट्यूशन क्या होता है, इज द पर्सन द मोस्ट पर्सनल वे ऑफ नोइंग। इंट्यूशन क्या मतलब है, उस दिन भी बोला था, इंट्यूशन जो सेल्फ एक्सपीरियंस से हमको पता चलता है, सिर्फ हमें ही उस चीज को महसूस बोलते हैं ना, महसूस करके जो पता चलता है, दैट विल बी योर इंट्यूशन। और वो भी एक सोर्स होता है टू नो समथिंग। इंट्यूशन जैसे कि जो उस दिन भी एग्जांपल दे, एक डेड पर्सन को कि कैसा लगता है उस 3 मिनट्स में, उसे ही उसने खुद एक्सपीरियंस किया है। सो ही ओनली नोज दैट दैट फीलिंग, उस फीलिंग उसमें क्या लगता है या फिर उस इमोशन को। तो ये सब कुछ फीलिंग्स एंड इमोशन एंड कॉन्ट्रास्ट विथ, ये सब कुछ आ जाएगा इंट्यूशन में। द कॉन्शियस
या फिर आप लोगों को भी जब डर लगता है या फिर कुछ बुरा होने वाला है, खुद ही लगता है कि नहीं कभी कभी कि मेरे साथ कुछ आज बुरा होने वाला है या फिर कुछ बुरा होने वाला है, that is also one kind of source of knowledge. So that will come under intuition, means a sudden flash of insight. So that will also come under source of knowledge, means the knowledge directly gain direct access into the heart of reality. Yet we do not know how we acquired this knowledge. हमको पता नहीं चलता है किस तरह से हमको वो फील हुआ है, मीन्स किस तरह से उस चीज को हमको इंफॉर्मेशन मिला है या फिर जो हमने फील किया है, दैट विल बी द इंट्यूशन. वी सडनली डिस्कवर इट एंड हम उसको फील करते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज रिवील्ड फेथ नॉलेज. फेथ नॉलेज मीन्स आप जिस चीज में बिलीव करते हो, दैट विल बी ऑल्सो वन काइंड ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज. मीन्स भगवान पे सब लोग विश्वास करते हो, so that will be the your revealed faith knowledge. और द इंस्पायरिंग रिकॉर्ड, मैन ऑफ रिकॉर्ड मीन्स सबका कोई ना कोई आइडल होगा, उनमें आप लोग बिलीव करते हो, सो दैट विल बी योर सोर्स ऑफ नॉलेज. सो गॉड और गॉड इंस्पायर सर्टेन मैन ऑफ रिकॉर्ड, और या फिर डिफरेंट अगर हिंदुइज्म में बोलेंगे तो हम लोग भागवत गीता, उपनिषद, दैट कैन बी रिगार्डेड एज अ रिवील्ड फेथ नॉलेज. फेथ है इसीलिए हम लोग उस चीज को बिलीव कर रहे हैं. भागवत गीता जो अगर कोई इंसान पढ़ रहा है तो उस चीज को हम लोग सच मान लेते हैं एंड वी गेन दैट इंफॉर्मेशन एंड वो हमारा नॉलेज हो जाता है. सो दैट ऑल विल कम अंडर रिवील्ड फेथ नॉलेज. क्रिश्चियन के लिए ज्वेल बाइबल होगा, इन हिंदुइज्म के लिए भागवत गीता एंड उपनिषद, कुरान होगा मोहम्मद मुस्लिम्स के लिए. तो दिस ऑल विल एक्ट एज अ रिवील्ड फेथ नॉलेज. There can be very little argument about the credibility of its source. बहुत कम इस सोर्स के बारे में जैसे कि क्रिटिसाइज या क्रेडिबिलिटी है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, इसका बहुत कम ही आर्गुमेंट्स होता है, बिकॉज एवरीवन बिलीव्स इन दैट एज अ true system, because already it has been said that reveal faith knowledge, so that also act as a source of knowledge. It neither can be proved nor disproved. One aspect it on faith but stressed whenever possible by reason and critical experience. तो ये चीज हम हमारे faith के ऊपर, divine truth के ऊपर निर्भर करता है. तो ये था different sources of knowledge. I hope everyone have understood.